علیکم، وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کی 36 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں، بہت ہی امیزنگ. تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف. لیٹ اسٹارٹ. اوکے ایز یو لائک. اب آپ سو جائیں، میں تنگ نہیں کروں گی. اور چینج کر کے ایزی ہو کے وہاں بیڈ پر سوئیں. تھوڑا سا اسائنمنٹ کا کام ہے مجھے، وہ کرنا ہے، لیکن آپ کی پوری رات میری ہوگی. ابھی کے لیے جان بخش رہی ہوں، حق جتاتی تھوڑے روب کے سنگ وسائل کی دونوں گال چومتی، جس بات کا لاؤ پر کھا کر اٹھنے لگی، مگر ساحل نے کھینچ کر واپس اس کے نازک معمولی وجود کو اس پر گرایا. ماں نے ساحل کی بےحد نگاہوں کے روبرو دل تیزی سے دھڑکتا محسوس کیا. اس کی گردن کی سفید پڑتی رنگت پر مائل ہوتا، جاندار ہونٹوں کی مہر گردن کے اوپر تیرک پر بکتا، اس کی قید میں جکڑے بالوں سے کیچر نکال کر دور پھینکتا، چہرہ گردن کی اور سرکائی اس میں سمٹنے لگا. ماں نے نچلا لب دانت میں دیے گہرا سانس بھرا. مت جان بخشو میری. ساحل کا اس سے بےخود ہونا ایمان کو شرمانے پر مجبور کر گیا، مگر پھر اس کے اندر کی جذباتی ملکہ جاگی. وہ اس کی گردن کو ہونٹوں کے لمس سے مہکانا ہر دوسرے بوسے سے افضل اور مدہوش کن جاتا تھا. اب مجھ سے زیادہ اٹیچ نہیں ہونا چاہتے آئی فیل. ساحل کے وہم و گمان میں بنا تھا وہ اس لمحہ یہی شکوہ کرے گی جب وہ اس کی رعنائیوں اور بکھری مائل کرتی میسر موجودگی میں ڈوبا ہوا ہے. ایمان، میں تم سے آلریڈی بہت اٹیچ ہو چکا ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا. ایسے الزام پر وہ شخص جیسے بچوں کی طرف اٹھے گردن سے چہرہ نکال کر صفائی دے گئے. ایمان کی ساری شرارت اس کی سنہری آنکھوں میں امڑی. آپ میرے لیے تڑپ کیوں نہیں رہے؟ پھر جنونی طریقے والا ایمان کی ایسی خطرناک خواہش سنے ساحل کا دماغ چکرایا. تو مجھے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں؟ ساحل نے اس کے گرد بازو حائل کھینچی تو ایمان اس کے چہرے پر جھکائی. وہ صاف صاف ہوا تھا. ارے نہیں، وہ والا نہیں، سمجھ نہیں رہے آپ. ایمان نے حیا سے سر ہوتے رخساروں کے سنگ جنجناہٹ سے سر نظر چکائی. ایکسپلین پلیز. اپنا رنگ بدل لیتی ساحل جبران خان کی آنکھیں جادوگری کا فن جانتی تھی. ایمان کی آنکھوں میں گھبرایا ڈرا ہوا تاثر جگا تھا. ساحل نے اس کی کمر کی دونوں طرف بازوؤں کی گرفت مزید سخت کی جو ایمان کی جان پر بننے لگی. تھوڑے سے جنونی ہو جائے میرے لیے. سرجا شدت پر ہونٹوں کو سانے والی مسکراہٹ سمیٹے وہ بے تکلفی سے مزید ستم گرانہ مشورہ تھمائے. ملائم لبوں کو سرگوشیانہ کیے بولی، جنون صرف نقصان کرتا ہے ایمان. ہے صرف محبت کی سب سے پرسکون قسم میں ہے جو مجھے تم سے ہے. آنکھوں میں والہانہ محبت بھرے وہ اسے دیکھنے لگا. میں یہ ڈیسائیڈ کروں گی نا پلیز. ایمان کو اس کی بات سمجھ نہ آئی تو ضدی لہجے میں بگڑی. ساحل کی نظر بھٹک کر کبھی ان سنہری آنکھوں، کبھی گداز چمکتے ہونٹوں، کبھی کرمزی رخساروں اور کبھی چونے سے میلی ہونے کا گمان رکھتی ایمان کی سفید گردن پر جا ٹھہری. ایسے مت دیکھیں. ایمان خود پر فریفتہ ہوتی ان گلابی لکیروں سے ہٹی. نیند کے خمار اور محبت کی جنون خیز تپش سے دہکتی آنکھوں کا تپتا لمس تک نہ سہ سکے. آہستہ سے آنکھیں جھکائے بولی، میرا آؤٹ آف لائن دیکھنا تو تم سے برداشت نہیں. باتیں تو اپنی جان سے یکسر الگ کرتی ہو. باز آ جاؤ ایمان. تحقاق بھرے بھاری لہجے میں افکی ملائے بولا تو ایمان واپس اس کے حصار میں بے بس سے سمٹ گئی. دل نہیں چاہتا باز آنے کو. وہ الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہے. اب کیوں ہے ایسے کہ میں جس سانچے میں کہتی ہوں ڈلنے لگتے ہیں؟ ایسے تو آپ ایمان کے پاس اس کا اپنا کچھ نہیں چھوڑیں گے. ساحل، مجھے آپ سے محبت سے کچھ بڑے والا ہو گیا ہے. آئی ڈونٹ نو کیا. کمزور پڑتے جیسے بڑے ٹوٹتے لہجے میں وہ بولتے بولتے روئی تو ساحل نے صدمے کی کیفیت سے اسے دونوں بازو سے پکڑے سیدھا کرتے چہرے کے مقابل لایا. آئی نو تمہیں کس چیز کا صدمہ لگا ہے. میں نہیں چاہ رہا تھا تمہیں آتے ہی پریشان کروں، لیکن تم مجھے کسی لائق نہیں چھوڑتی. ایمان، مجھ سے بچ کر رہنا سیکھو ورنہ ضائع ہو جاؤ گی. خبردار، جو تم ملکہ جذبات بنی فضول میں روئی. ساحل نے اس کے آنسو جو ان کانچ آنکھوں سے نہ جانے کیوں رخساروں پر ڈال آئے پیار سے پوچھو. اس سے پہلے اس کے تھمے ہوئے دل کو بحال کرتا وہ آنکھیں چراتی دور ہوئی. آپ کو نہیں پڑی میرے قریب آنے کی تو اب میں بھی نہیں آؤں گی. نرمی سے کپکپاتے لہجے میں انکار کرتے وہ نہ صرف اس کی کمر کی طرف بازو ہٹاتی اس کی تھائس پر سے اٹھی بلکہ جانے بھی لگی. جب ساحل نے بیٹھے ہی اس کی کلائی تھامے اٹھ کر اپنی سم کھینچا. وہ روبرو اس کی محبت میں دیوانہ ہوا شخص کیسے برداشت کرتا کہ ایمان اس کے کسی لمس کو ترسے. باہدہ یہ ایمان نہیں سنبھال پاؤں گا. آئی ایم سوری. دوبارہ ایسا کرو تو گردن دبا دینا. ساحل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہی ذرا جھک کر اس کی نم گال چومی، پر وہ ابھی بھی دور دور ہونے کو برہم دکھائے. مچھلی ڈونٹ ٹچ می. آنسوؤں کو زبردستی آنکھوں میں لائے منمرائی تو ساحل نے اسے اپنے سینے سے لگایا. مجھے بہت پڑی ہے تمہارے قریب آنے کی. سچ میں. اس کی پیری آنکھیں اپنے بے قرار چہرے پر واپس ضبط کیے. اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ کی گرفت بنائے بولا تو جذبات سے بھری آنکھیں چار ہوئیں. وہ اس کا چہرہ اپنے خوبصورت ہاتھوں میں بھرتا، من پسند سانس در سانس خوشبو بکھیرتا. لمس اس کے ہونٹوں میں تحلیل کر گیا. ساحل کی بےتاب سانسوں کا اپنی سانسوں سے اپنی پسند کا ملا محسوس کیا. وہ بند آنکھوں سے مسکرائی اور بس سانس منجمد ہوتی گھبرا کر دور ہوئی. اب تم ہو تو دور ہوئی ہو. ساحل کو اس کا پر دھکیلنا چڑھا گیا. تو کیا کہوں کہ جان لے لیں تو سچ میں لے لیں گے. ایمان کا اپنی منتشر سانس بحال کرتے جواب. ساحل کو ہچ ہچ کر گیا. تم نہیں بچو گی ایمان کی بچی. اس سے پہلے وہ اپنے غصے کی ڈوز دے کر واقعی سرپھری کی جان لیتا. ایمان کھلکھلا کر ہنستی فوری کمرے سے بھاگتی باہر نکل گئی. لیکن ساحل جبران کی ساری ناراضگی تھکن اپنی چلبلی حرکتوں سے جسم کے انگ انگ سے نکال کر لے گئی. اتنی بڑی بات وہ کیسے چھپا سکتی ہے؟ یا میرے خدا. اپنے سامنے میٹرس پر بیٹھے آئس کے منہ سے تمام حقیقت سننے کے بعد ضیاء عالم کے چہرے پر اذیت تھی تو عریشہ نے اپنا سینہ سہم کر تھاما. ڈنر کو بھی وقت تھا مگر عائش نے ادا اور اپنے رشتے کی ضروری سچائیاں بانٹ لیں. جتنی دیر ہوتی اتنا بتانا مشکل ہوتا.
इस वक्त हालात ऐसे थे, मम्मी इब्राहिम चाचू की मौत छोटा हादसा ना था। ऐसे में एदा अपने वजूद में लगते इसके रहन का जिक्र करती तो दुख पड़ता, या शायद ऐसी शिद्दत इख्तियार करता जिस पर हर मरहम असर करना छोड़ दे। जब मुझे अदा की इस कमी के बावजूद कबूल है, तो आपको भी हकीकत कुदरत के फैसले के तहत कबूल करनी होगी। मम्मी की तकलीफ और महरूमी का मातम आयस को उनको तसल्ली हौसला देना ज़रूरी लगा। तो क्या हम तुम्हारी औलाद को तरसते मर जाएंगे? तुम एक ही बेटे हो हमारे आयस। जो भी था, रीशा का दिल एक बार शिद्दत से कटा तो ज़ियान ने नरमी से रोती रीशा को अपने सीने से लगाया। एदा के साथ जो हुआ वो वाकई काबिल बर्दाश्त नहीं है, खासकर एक लड़की के लिए। शादी के बाद पहला ख्वाब माँ बनने का होता है, इसे तुमने उसके बावजूद कबूल करके मेरी और रीशा की तरबियत का हक अदा किया है। हम में से कोई भी कभी तुम पर कोई ज़बरदस्ती की ख्वाहिश का बोझ नहीं डालेंगे। मम्मी की गम की तकलीफ आयस को थी, पर ज़ियान आलम का फ़ख्र उसके डूबते दिल को तक़वियत बख्श गया। लेकिन ज़ियान, रीशा ने कमज़ोर सी तड़पती आवाज़ में कुछ कहना चाहा, मगर ज़ियान ने उनकी तरफ देखते नर्म निगाह से तंबीही खामोशी का इशारा किया। उठकर खड़े हुए तो आयस भी फौरी उठा। मेरे लिए जैसी मेरी लीज़ो और ईमान है, से बढ़कर एदा है, मेरे लाडले भाई की जान से प्यारी बेटी। इसने बहुत कड़े वक्त में ये दुख पाया था। आयस कभी ज़िंदगी भर से ये एहसास मत होने देना कि उसका दामन इस नेमत से खाली है। वो तुमने सुना है ना बाबा के शेर कि अपने लिए तो सब जीते हैं, किसी अपने के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। अपनी मम्मी की टेंशन मत लो, इसे समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। गर्मजोशी से ज़ियान आलम अपने शेर जैसे बच्चे को सीने में बेचा। आंखों के किनारों में सुर्खी सिमटी तो रीशा की आंखों से कई आंसू बह निकले। आयस ने बाबा से अलग होते वहीं काउच पर बैठी मम्मी के कदमों में बैठे उनके दोनों हाथ कांपते हाथ थाम कर चूमे। आपको हादी और अनान के बच्चे दादी कहेंगे ना? दिल थोड़ा क्यों कर रही हैं? अनुषा भी तो आ जाएगी, जिसे मैं और एदा अडॉप्ट करने वाले हैं। मम्मी, मुझे इस फैसले में आप दो की सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं एदा से अपनी मोहब्बत साबित कर सकूँ। अनुषा मेरी और एदा की बाहमी खुशी है। मुमकिन है उसके आने से एदा की वो महरूमी कम हो जाए, जिसका दर्द दर हकीकत मेरी दिल जोई भी कम नहीं कर सकती। एक औरत का दर्द एक औरत ही समझती है। मैंने खुद बहुत मुश्किल से अपने दिल को मजबूत किया है। ये कभी ना रोने वाली आंखें अगर मेरे लिए भीगती रहीं तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा। सलीके और प्यार से लहजा दिल सोच रखे। वो रीशा के आंसू पूछ गया, तो वो भी सब्र बड़ा सांस खींच कर आंसू रो के प्यार से आयस के दोनों हाथ चूमे। तुम बहुत प्यारे हो आयस, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मेरी जान, ये एक राज़ी और बहुत बहुत आसूदा माँ की दुआ है, खुश रहो। आसूदगी से आयस की पेशानी चूमते रीशा ने दिल को संभाल लिया, तो वो भी मुस्कुरा कर बैठे बैठे उनको घेरे गले लगा गया। दोनों की मुस्कुराती आंखें उम्मीद थी, और आयस के कमरे से जाते ही ज़ियान पलटे तो रीशा की फिर से भीगती आंखें देखते वापस उसके पास बैठे, जो रोती हुई उनके सीने लगकर हिचकियों के संग रो पड़ी। मेरी प्यारी रोहा जान, छिड़कने वाले शोहर की मौत के बाद औलाद के दुखों से निडाल हो रही है ज़ियान, और मैं कुछ नहीं कर पा रही। क्या वो एदा का ये दुख बर्दाश्त कर लेगी? इस वक्त अपनी महरूमी नहीं, बहन का कर रुला रहा था, और ज़ियान अच्छे से जानते थे दोनों बहनें कम माँ बेटी की तरह ज़्यादा रही हैं। जितनी लाडी रोहा थी, ज़िंदगी ने इसे इतने इम्तिहान में डाला था। इसने कहा है वो एदा रोहा को अनुषे के जब लाएंगे तब ये बताएंगे, और ठीक भी है। रोहा भाभी अभी पहले भी अनान की वजह से परेशान है, और हम सब बहन अर्ची मिलजुल के एक दूसरे की कमियाँ दुख सुख बांट लेंगे। इस वक्त रीशा का दिल बहुत भारी हो रहा था। मेरा इसकी इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, इतना ज़र्फ आजकल के मर्दों में कहाँ होता है ज़ियान। मैं उसके फैसले से ज़्यादा हिम्मत पर दुखी होगी। मेरा बच्चा कितनी मोहब्बत करता है एदा से, इससे बड़ा क्या सबूत होगा? रीशा के बहते आंसुओं को नरमी से पूछते ज़ियान ने रीशा की बातों पर एहतमाम तक दिल सोच सा मुस्कुरा दिए। एदा है ही मोहब्बत के लायक। हम सब ने अपने बच्चों की तरबियत में अपनी ज़िंदगी के बहुत से खुशनुमा साल सर्व किए, और अल्लाह हमारी की रियासत कभी रायगा नहीं होने देगा। अब आंसू पूछ लो और अपने बेटे की हिम्मत बनो। ज़ियान का नरमी से उनकी जबीन चुप कर प्यार से समझाना रीशा को मजबूत कर गया। वो बीकी आंखें पूछती ठीक से बैठी। ज़ियान ने हाथ बढ़ाकर उनकी रुखसार को लाड से छुआ। इस पहले बहुत गुस्से वाला हो, हकीकत पसंद हो, लेकिन मोहब्बत के मामले में आपसे भी बाजी ले गया साहिब आलम। गुलाबी रोने के सबब जर्दपन में घायल आंखें ज़ियान के चेहरे पर टिकाए वो मसरूर सा मिनमिनाई। अपने दौर में हम भी बहुत बेहद हुआ करते थे मेरी जान, दौर बदलेगा तो ऑफकोर्स शिद्दतें भी बदलेंगी। वैसे मैं अब भी खुद पर ही इल्ज़ाम ढोने को तैयार हूँ, लेकिन फिर से लीसू से नेक्स्ट पीस आने का खतरा है, और अब ये अच्छा नहीं लगेगा। अब तो मेरा लाडला इब्राहिम भी नहीं, जो इस परचम तले साथ आन खड़ा होगा और मेरी घबराहट मिटाएगा। ज़ियान ना तो संजीदा थे ना उदास हो। इस वक्त उनकी शरारत पे लफ्सी गुस्ताहियाँ रीशा के चेहरे पर सुर्खियाँ समेट लाई। दोनों को वो वक्त याद आया जब 10 साल पहले ईमान के काफ़ी बड़ा होने के बाद इनके यहाँ एक नन्हे मेहमान की आमद होने की खबर मिली। फिर बस क्या, एक माह बाद रोहा और इब्राहिम ने भी ये मार्का मार डाला कि भैया जानी आगे बढ़ गए तो हम काहे को पीछे रहें। वो वक्त याद किया, इस वक्त दोनों हंसे तो मंजर तक दिलकश हो गए। जिन्हें नहीं कर अनार ने काफ़ी देर से अशफा को न देखा। वो 1-2 घंटे हॉस्पिटल जाकर पेशेंट्स भी दिखाया। वापस आया तो हाजर ने डिनर में कुछ खास तैयारी की थी, और जब डिनर का पूछा तो अनार ऊपर अशफा को बुलाने चला आया, मगर दरवाज़ा खोले उसकी पुकार सामने की मंजर से थम सी गई। इनर मैट्रेस पर वो नाजुक सा वजूद बेखबर मस्त सी नींद में गुम था, और केमिस्ट्री की किताब सीने पर रखकर एक हाथ बुक पर और दूसरा पुष्प के संग गाल से लगा रखा था, जिसकी गुलाबी मुलायम हथेली आवेजा होकर गाल से लगी थी।
ये लड़की कितना सोती है, वरना जिनके एग्जाम सर पर हो उनको तो मौत का फरिश्ता वैसे ही नजर आता रहता है। नाने हैरत से सोचा, पलटने लगा, मगर किसी चीज़ ने मजबूर किया रुकने को। वो थी अशफा की शर्ट का दोहरा होना, जिसके सबब उसकी कमर की सफेद रंगत मुलायमत झलक रही थी। आंखों में फितरी सी झिझक लिए हुए उसके करीब रुका और नजर फेरे चुकर उसकी शर्ट ठीक की, वापस नजर अशफा पर डाली, जिसकी मासूमियत बिना गौर किए हुआसों को इस लम्हा चिकटती महसूस हो रही थी। नजर अशफा की ब्यूटी बोन के पास बनी सुर्ख मेहर पर गई तो पास बैठे हाथ दाएं उसके दाएं बाएं रखता मुस्कुराता हुआ इस पर झुका। मजीद झुकने पर अजीब सा जुनून सवार हुआ तो इस सनाबी मेहर पर फिर से अपने गर्म लबों को रखते नरमी से चूमा। अशफा की आवाज़ नाक के नथनों में घुसती, जेंट्स तेज परफ्यूम झुनझुनाई से पहले कि नान वापस उठकर अपनी सिचुएशन बहाल करता तब थम गया, जब वो मंदी मंदी आंखें खोले से अगले ही लम्हे गोरी चीखना मत को उसके चेहरे के बदलते तासुरात से उम्मीद वासिक थी कि वो भी उसके कान के पर्दे फाड़ेगी, मगर तभी पेश की तंबीह के वापस ठीक से बैठा। अशफा ने डरते हुए किताब साइड पर रखी और टांगे सुकेर कर उठ बैठी। क्या कर रहे थे? अशफा ने उसको दूसरी तरफ मुकर के बैठे देखकर हिम्मत करते पूछा, पर लहजा पर हम रखा, तशद्दुद पर तहकीक, तुम्हारी गर्दन पर मेरा ये पागलपन सज रहा है। अना ने जर से गर्दन फेरी। अशफा की नज़र फौरी किसी नादीदा हरारत रखते सास ने बुझल की। आपने जोई को 7 माह में वाकई टच नहीं किया था, या वो झूठ बोल रही थी? अन्ना जाने के ऊपर हनान से जुड़ी मोहब्बत इस लम्हा उठा के मलकियत का नशा होता ही बड़ा ताकतवर है, पर ये सास की जो आपका इस पर आपके सिवा किसी बदसूरगी तक का रंग ना रहे। नानी गहरी नजरों से अशफा के चेहरे को देखा। बिना किसी मेकअप के वो बहुत ज़्यादा फेयर और गुलाबी सा चेहरा रखती थी, हाथ लगाए मैला हो जाता। ये तो नान ने नोट किया, उसके होंठ नरमी के साथ नेचुरल गुलाबी रंग में से माला माल थी, जिन्हें जुबान फेंक कर तरक्की वो मजीद जानलेवा कर चुकी थी। है तो बहुत मनूस, मरती मर जाती, पर ये सच ना कहती। हैरत हुई, वैसे टच किया भी तुम्हें क्या परेशानी है? जैसी भी थी बीवी थी। अनान इसे सीधा जवाब देना ही ना चाहता था। वो कुछ लम्हे अशफा के बहुत करीब रहना चाहता था। ज़बरदस्ती निकाह की कोई वैल्यू नहीं थी, मुझे उसकी बातों पर यकीन भी नहीं। आपसे पूछा है, आप बताएं। हनूज नजरें कभी उठाए कभी चुकाए, कन्फ्यूज़ होते इसरार किया गया, तुम्हें मुझ पर यकीन है? अना ने वहीं तकिया खींच कर उसके सामने ज़रा दोहरा होकर तकिए से बाजू टेक कर लेटे चुकी जालरों वाली आंखें मिलाने की कोशिश की। दुश्मन ने रहे से पैर भी सुकेर समेट कर चौकड़ी मार ली। मुझे बहुत से मामलों में आप पर यकीन नहीं है, पर इस वाले में है, बताए ना। वो इस पर जिद में अड़ी, सख्ती से सरार किए बिगड़ी। अभी तो ज़बरदस्ती हुआ था मुझसे निकाह, और तुमने मुझे आज किस भी कर दिया। नानकवार हाली कैसे चाहता, वो सफ़ाक के साथ चालबाज भी बलाकत। अशमा ने बेहतर नज़र उठाई, इसमें डर था, मुकाबले इम्तिहान लेती, काली कलूटी आंखें निकलने को तैयार थी। मुझे तो प्यार था आपसे। मैं साथ अशफा के होंठ गजबटाते हुए पड़पड़ाए, मगर इस बेहूदी को मुकम्मल करने के बीच हुए कह डालते पर फौरी चुप हुई। चुप भी हुई, उठ कर जैसे बेड से उतरे कमरे से निकलने को भागी। नान ने उठकर तेजी से उसकी कलाई चकते अपनी तरफ खींचा। पसंद पसंद कहना था मुझे, वो गलती से कहा। अशफा ने डुबडुबाई आंखें चुराते गमज़दा हो घबराते तस्हीह की, मगर तब सांस लेना छोड़ गई। जब इन सांसों पर नान इब्राहिम ने फूल की नरमी से तसल्लुत जमाया, खुदा गवाह था चंद दिनों में चुभन सुकून में बदलती हुई इन दो की महसूसात ने चखी। ज़हीर कर गया नरमी भी, गुलाबपन भी, लेकिन अब खुदा ही सब्र देने वाला था। इस लड़की को छोड़ना मुमकिन होता, वो बार बार नरमी से उसकी सांसों में अपनी खुशबू उतारता। पर इसे रखकर बेहूद होते अशफा को देखने के बाद फिर से अपनी तशनीकी को इस नुक्ते पर पाता, जैसे अव्वल और अशफा से लगा कायनात थम चुकी है। वो हिला के आखिरी किनारे पर घूमते किसी बेजिस्म जर्रे पर खड़ी है, हिले तो के खिंचाओं की जुर्मट में खो जाएगी। पसंद को प्यार ही रहने दो अशफा, नूर मुकरना मत, ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा इस प्यारे होने की एडवांटेज में, बस अपने होठों पर अब से मेरी हुक्मरानी कबूल कर लो, ये मुझे अच्छे लगे। जब जाके आखिरी हद तक उसको नर्म से ताक बड़ी बो झाड़ में खुद भी मदहोश कर गया, तो उसके कान की ओर झुककर बस यही कह सका, और इतना कैसा कहना अशफा के वजूद से जान सिरका गया। ऐसा सब मुफ्त में नहीं मिलता, सामने वाले को समझना भी पड़ता है। क्या फ़ायदा चुभन खत्म होने का, दिल में तो आपने मेरे आग लगा दी है। अपने सफ़ा को हुक्म से हटे का दिल तो कब्र है, फिर ये दीवानगी क्यों जाग रही है आपके अंदर? अपने आप को बड़ी जिम्मा करती, इस गुर्बत और तशनीकी का बाहमी सुकून चुटलाए, सारा इल्ज़ाम अनान के कदों पर डाले। वैसे परे धकेलती हवा मुंह फेर गई। वो और मामला है ये, और तुम्हारी मौजूदगी को मेरा यूँ बेख्तियार सराहना मेरी दीवानगी होती तो अभी तो मेरे बिस्तर की जीनत बनी होती, और मैं जिस्म का सुकून बढ़ा रही होती। वो जिसम एक हो जाते जैसे दीवाना करते हैं। कुछ चीज़ें बहुत अनमोल होती है, अशफा उनको होठों से लगा कर चूमना पड़ता है। वो तलब नहीं होती, वो आदत और रवायत की तरह बनने लगती हैं। उसके बिखरे बाल नैन पोरों से समेटता, वो उसको पूछते ही उससे लगाए सरगोशी में बोला, जैसे अभी भी सरूर में मुबतला हो। अशफा कान की लो तक सुर पड़ती, उसके हिसार में कब उठी। अगर तुम चाहोगी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इस नाजुक कांपते वजूद को मजबूती से थामे वो अपनी तरफ पलटाए, उसकी आंखों में झांका। सेकेंगे क्या? दूर से हाथ पैर लम्हा लगा था अशफा का मीटर शार्ट होने में, उसके हिसार को जिनजाती की तरह चटक गई। मतलब जनना ने जीभ से गुरी नवाजी, मतलब आपका सर जिसमें भूसा भरा है, अगर आपको मैं चाहिए हो तो मेरे अलावा आपको सब बोलना होगा, हर चलन, हर दुश्मनी, हर जिद। जिस दिन आपने ये जिद छोड़ी, मैं खुद आपके करीब आऊँगी और कहूँगी कि बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। अशफा ने उसकी उलझी आंखों में घुसीली, मगर बाद में नरम पड़ती आंखें गाड़ी। तुमने कह दिया है, ना ने खोए हुए ही लकमा दिया तो लहजा पर वो घबराई। वो तो मिसाल दी है मेंटल डॉक्टर। अशफा का बस न चला, उसके सर को हिलारे देने लगती ज़ोर ज़ोर के। वो आई पर मुझे तुम क्यों चाहिए होगी? मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं। मगरूर बने अपने बहकेपन को फौरी समेट लेता, वो नाक पर चढ़ा गया। तो फिर बड़ी सी जगह ज़मीन खोदें और जाकर लेट जाएं। अपने बगल में अपनी यामियों को भी सुला लीजिए, और झिंगा लाला करना मत भूलिएगा। मेरे दिमाग का भी भूसा करेगा ये संकी बंदा।
से परे धकेलती इशपा फौरी कमरे से निकल गई, पर अदनान को अपनी कैफियत बहाल करने को कहकहा लगाकर हंसना पड़ा। वो झिंगा लाला करते हुए ख्यालों में खुद को भी नहायत बेहुदा लगा। साहिर ने 3 घंटे सोकर थकन उतारी तो डिनर से पहले एक अहम कॉल पर वो सबसे माजरत करता निकल गया। ईमान ने ढेर मुंह बसूड़ कर रोकने की कोशिश की, मगर कॉल मुहिब बलोच की थी। वो मुहिब को अपने स्तबल ही सीधा आया। न सिर्फ बहुत से मामले, बहुत सी शिकायत तय करनी थी, बल्कि हान सफ्तर जो बलोच खानदान के आला पाई के शेफ थे, उनके हाथ के पाए और निहारी भी इससे स्पेशल साहिर के लिए बनवाई। वो 2 आला नस्ली तुर्किश घोड़े ही बलोच इसे दिखाने स्तबल लाया तो यहाँ के माहौल घुड़सवारी के खुले मैदान की जानिब ही वो 2 वॉक करते नजर आए। स्याह शलवार सूट में, पैरों में पेशावरी चप्पल पहने, दबंग मूछ दाढ़ी के साथ साथ मुहिब बलोच का रोब भी वैसा ही शानदार था, और साथ चलते वो बज़ाहिर ठंडा मिजाज रखते जनाब साहिर जिब्रान खान। वजाहत में दोनों एक दूसरे की टक्कर के थे। एक अंग्रेज़ी हसीन तो दूसरा देसी। दोनों की जोड़ी चंद साल ही पुरानी थी। आप इस सबसे वाकिफ़ हैं हान की मर्द की मोहब्बत दब जाती है, मरती नहीं। फिर भी मुझे इस काम की चुनने के लिए वजह जानना चाहता हूँ। वो अपने साथ मसरूर से खामोशी के संग सिया सफ़ेद के हसीन इम्तिजाज में दमकते साहिर से शिकवा कर ही दिया, लेकिन तुमने यकीन दिलाया था मर गई है। साहिर के मुस्कुराते जवाब पर मुहिब पीछे ताप खाता रह गया। बकवास की थी हान, बहुत पर पस सचिहा था। एन वक्त पर बेईमान हो रहे हो मुहिब बलोच। बुलो मत, इसे जौहन तक पहुँचाना जिम्मेदारी है मेरी। वो जैसे भी है जहान के साथ सेटल हो जाएगी, क्योंकि वो लोफर चाहता है उसे, ऊपर से बाप की खुशी से शादी कर लेगी, मामला ख़त्म। साहिर ने मुकाबिल के जज्बात कुछ ज़्यादा ही सर समझते सख्त से अल्फाज कहे, जिस पर मुहिब चलता चलता रुका। वो मुसलमान हो गई है। मुहिब की बात ने साहिर के कदम में झटके से रोके। हाँ हाँ, तुमने किया है। इमोशनल ब्लैकमेल या जज्बाती। साहिर मुकाबिल की रग रग जानता था। मुहिब ने नज़र से चुराई। बहुत ख्वाहिश थी वो हम मज़हब हो जाए, इसी बहाने उसकी थोड़ी सख्ती टल जाएगी। तभी बहुत से नागवार लफ्ज़ कह दिए उसे, उसका किरदार मिसाह भी किया, बदकिरदारी की गाली भी दी, पता नहीं और क्या क्या, मुझे याद भी नहीं। मोहब्बत जैसे मुहिब जैसे शानदार मर्द की झुकी नज़र साहिर को बड़ी सच चुभी। इसने तुम्हारा तो कुछ नहीं बुरा नहीं किया, फिर इतनी संगदिली। तुम्हारा जुनून एक तरफा था मुहिब बलोच। तुम उजड़े उसकी तलब व ख्वाहिश में दीवानगी के हदों को छू कर लौटे हो। इसे तो खबर ही नहीं कि अल्लाह ने कितनी सख्त आजमाइश ली है तुम्हारी उसके नाम पर। साहिर ज़रा खफा था। एक तरफा मोहब्बत करने वाले न जाने क्यों महबूब की परस्तिश करते करते इन्हीं पर एक दिन कीचड़ उछालने लग जाते हैं। क्यों कर सब टूटने वाला रखा हुआ है तो मोहब्बत की गली में दाखिल होते हो। मेरी मोहब्बत इसे छूकर भी नहीं गुजरी। इसी का मातम था जो मैंने एक उम्र मनाया खान। मैंने तो सुना था इश्क जिससे किया जाता है इससे खबर होती है। अव्वल तो मुझे इससे इश्क की समझ ना आ सकी, जब आई तो खुद पर 2 अरब बेचकर ऐसे संवरने से उजड़ना ही बेहतर जाना। हो सके तो इसे आजकल में थाईलैंड भिजवा दे, मेरी जान छुड़वाएं इस आसेब से। तब वालदा साईं बिस्तर से जा लगी थी। अब मुहिब बलोच उजड़ा तो मर जाएंगी। इस इलाके की साहिबान का मैं दुश्मन नहीं बनना चाहता। मुहिब की नज़रें भिड़ चुकी तो साहिर से इस बार यह बर्दाश्त ना हुआ। मजबूत हाथों की पकड़ के संग उसकी तवाना शाने पकड़ कर झंझोड़ा। अगर वो हम मज़हब हो गई है तो तुम आजमा सकते हो किस्मत में, जहान को गोली करवा दूंगा। वो कौन सा मेरा सगा है। साहिर के शफाक जुमले मुहिब को लर्जा गए। पर आपने इससे वादा किया है खान। मुहिब की आवाज़ मजबूत होकर भी दब गई। वो वादा ही क्या मुहिब बलोच, जो वफा हो जाए। जहान की किस्मत में शायद कोई और आजमाइश लिखी हो। आसमान पर सितारों की चाल बदल गई है, हमें भी पैंतरा बदलना होगा। इसी लम्हे आसमान पर एक खास लकीर बनाते सितारे साहिर की तवज्जो का मरकज़ थे। मुहिब ने हैरत से सर उठाया। हाँ, आप सितारों की चाल कब से समझने लगे। मुहिब ने हैरत को सवाल बनाया। जब से एक सितारे पर दस्तरस पाई है। ये जुमला एक दीवाना ही कह सकता था। मुहिब बलोच के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी। वैसे ज़ोए फरजाम आजकल आप पर लट्टू है, इसका क्या करें। न जाने क्यों पर साहिर को मुहिब के लहजे में जेलसी से महसूस हुई। तभी तो मौसूफ शरारत पर मुस्कुराए। बिना देखे मिले लट्टू है, फिर तो मेरा उसके सामने ना आना ही बेहतर है। गरीबों की रोजी रोटी पर लात नहीं मारनी चाहिए। शरारत पर आमादा हुए वो जो चुलबुली बात कह के आप बलोच की शिकवा के नाम मासूम गोरी हंसा भी गई। 2-3 दिन जोए को वहीं रहने दो, मिलते रहो, इससे समझ आ जाती है तुम्हें तो वेल एंड गुड, वरना से थाईलैंड पहुंचा कर आने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। और जहान और उसके वलीमे के चावल खाने का टार्चर अलग। जले पर नमक छिड़कता साहिर मज़े से सुलगाए वापस चल पड़ा। बलोच साहब हाथ का मुक्का ही बनाते रह गए, मार नहीं सकते थे। वो बहुत प्यारा था इसे अपनी हर शरारत के बावजूद। लेटे लेटे दिन को ऐसी आंख लगी कि घर के पास बनी मस्जिद में अज़ान इशा की बावाज़ बुलंद पुकार पर जोए की बेह पर हवास किसी खौफज़दा करते एहसास की जकड़न से बहाल हुए। फ़ौरन से उठ बैठी तो पूरा वजूद गर्मी के एहसास से नम था। शायद बिजली जाने के सबब बंद होते पंखे के सबब इसे हब्स ने घेरा। मैं इतना ज़्यादा सोई। जोए ने बाहर कमरे में मौजूद खिड़की के सहन में छाए अंधेरे को देखकर खुद कलामी की। बिजली जाने के सबब इसे कुछ दिखाई देना भी बंद हुआ। उफ, इस अंधेरे में मर ही ना जाऊं। बमुश्किल बेड का सहारा लिए वो उठी और खिड़की के पास जा लगी, जहां आसमान पर निकले चांद की चांदनी ने बाहर सहन में चांदनी बिखेर रखी थी। यहाँ खड़े होकर इसे डर का एहसास होना कम हुआ, मगर अंधेरे से खौफ बदस्तूर आ रहा था।
بتایا نہیں تھا یہاں لائٹ جاتی ہے، اف بلوچ اف گھڑی سی سڑک کنارے روکتا اپنے فون کی ٹارچ چھان کے محب نے گھر کی طرف قدم بڑھائی۔ یار سے ملاقات کے بعد محبوب یاد آیا تو پہلے ساحر کو رخصت کیا اور پھر فوری بھاگا صحن میں دوڑ کر آتی بلی اور اس کی دل سوز چنگار پر کہیں ہیلو میں محف زوئے بھی سہمی چیخ دبانے کو منہ پر ہاتھ رکھا اور اس سے پہلے باہر ہوتی کھٹ پٹ پر کسی ہلائی محلوق کا گما کرتی باہر دوڑتی دروازے میں کسی سے بری طرح ٹکرائی، مگر محب نے بر وقت اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے نہ صرف گرنے سے بچایا بلکہ اس کے ہاتھ میں موجود فون کے نیچے کارپیٹ پر گرنے کے سبب پورا کمرہ روشن ہوا۔ زوئے کے کپکپاتے وجود کو تھامے اسپاٹ چہرے کے سنگ محب نے اسے پکڑ کر اپنے پہلے سے ہی جہنم بنے سینے سے الگ کیا۔ نہ جانے تم میرے کس گناہ کی سزا ہو زوئے فرجام، وہ سختی سے آنکھیں میچے ذرا سا کانپتی پھر سے اس کی بازو سے لپٹی۔ تم مجھے یہاں کیوں چھوڑ گئے؟ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، وہاں بھوت تھا، زوئے نے ہکلاتے ہوئے بمشکل لفظ ادا کیے اور اس بار محب نے ذرا سا گریف کے سنگ سے خود سے دور کیا انداز میں چڑ تھی جیسے ڈائن کے ہوتے ہوئے بھوت کی کیا مجال جو تمہاری آس پاس بھٹک سکے ہے؟ ریلیکس، دور ہو جاؤ مجھ سے، اب چپکی تو تھپڑ کھاؤ گی۔ محب کی جاڑ پر زوئے نے ڈرتے ہوئے سختی سے میچی آنکھیں کھولی تو کمرے کو روشن اور محب کو جھک کر اپنا فون اٹھاتے دیکھ کر وہ فوری دو قدم دور ہٹ کر کھڑی ہوئی، لیکن سہمی سی نظر 400 اب بھی ڈالی جا رہی تھی۔ تم بہت ہارش ہو اینگری برڈ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو ایسے ڈانٹ رہے ہو؟ مجھے سچ میں ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جانا، اب چھوڑ کر مت جانا۔ زوئے نے نم آنکھوں سے اس کی قمیض کی آستین ذرا سی 2 انگلیوں میں لیے شاید اپنے ڈر کو سہارا تھمایا اور اس کی اس حرکت نے محب کو کہیں دل سے جلا کر بھسم کیا۔ تم میری پھپھی کی اولاد نہیں ہو جسے ساتھ لیتا پھروں، پاسپورٹ تمہارا نیو بنے گا، اس میں 3-4 دن لگیں گے، تب تک تمہیں یہیں رہنا ہے۔ محب نے فوری اپنی بازو ترش لہجے میں ڈپٹے چھڑوائی اور کمرے سے بفری موج بنا نکلا تو زوئے بھی اس کی قمیض کی پشت چکرتی پیچھے ہی سایہ بنی لپکی۔ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا، پلیز جب تک روشنی نہ ہو مجھے پکڑنے دو نا، میرے ہاتھ لگانے سے تم گندے نہیں ہو جاؤ گے۔ زوئے نے اس کی ڈانٹ سے پہلے بے بسی سے منت کی۔ محب نے غصہ دبایا اور کچن کا رخ کیا، وہاں موجود ڈرا سے موم بتیوں کا پیک نکالا اور کچن اور بڑے اٹیچ کمرے میں جگہ جگہ جلائیں۔ اس بیچ زوئے اس کی بازو پکڑے ساتھ ساتھ چلتی رہی، موم بتیوں نے کافی حد تک اندھیرا نکلا تو محب کو ہنوز اپنی بازو چکر کر ادھر ادھر دیکھتی زوئے پر تپ چڑھی۔ اب چھوڑو، بے دردی سے اپنی بازو اس کے ہاتھ سے جھٹکی جس پر زوئے نے اداس سی مسکراہٹ دیتے ڈائننگ کی کرسی سنبھالی اور خاموشی سے سنگ دل سے شخص کی پشت آنکھوں سے گورتی بیٹھ گئی۔ وہ جاذب اور پرکشش شخص تھا، کی وجاہت متاثر کنتی پر ہاتھ دلچسپی سے محب کی گھنی ٹاونی مونچھ اور داڑھی لگی۔ کھانا کھاتے وقت یہ اس کے منہ میں جاتی ہوگی پکا، خود ہی امیجن کرتی زوئے برا سا منہ بنائے مسکراتی جا رہی ہے۔ کیسی لگی کس کیا ہونے والا ہے؟ چینل لازمی سبسکرائب کریے گا تاکہ بر وقت کس مل سکے۔ تو ملتے ہیں 37 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔